للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اختری بیگم مرحومہ بنت محمد حسین مرحوم کی روح کے لیے ہدیہ ثواب کی ایثار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی مغفرت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ارباب فہم و ذکا، ارباب علم و دانش، ارباب عزا، آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتوں کو پیش کیا ہے، جس میں پروردگار عالم وہ پروردگار کہ جو رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، سب سے جلدی راضی ہو جانے والا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمان و زمین میں جتنی اشیاء ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. کون اللہ؟ وہ اللہ کہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور اس پروردگار نے انہی امیین میں سے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو ان کے اوپر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے بھولی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ ہوگا آیت کا ترجمہ اور مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. عزیزان گرامی، اب ذرا میرے ساتھ چلیے گا. میں انہی آیتوں کے ترجموں میں سے 2 لفظ لیتا ہوں. پیغمبر اسلام کی ذمہ داریوں میں سے 4 ذمہ داری ہے: آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یہاں پر مجھے 2 ذمہ داری اٹھانا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. دیکھیے، اب لفظ حکمت کی تشریح کروں آپ کے سامنے کہ لفظ حکمت کسے کہتے ہیں. لفظ حکمت کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ. اسلام دین حکمت ہے. اسلام ایک ایسا قانون ہے کہ جس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. میں گزارش کروں گا تاریخ کی روشنی میں کہ ایسے افراد کون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے اندر حکیمانہ طور پر قدم اٹھائے ہیں اور حکمت عملی سے کام لیا ہے. ہر چیز میں حکمت پائی جاتی ہے. مثلا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہمارے درمیان سے مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے
تو جب لوگ سنتے ہیں مرنے کی خبر تو کیا کہتے ہیں ہر ایک کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی دوسرا جملہ نہیں آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اور جملہ کہیں, آپ کوئی اور جملہ کہیں. مرنے کی خبر سنی تو آپ نے کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب ذرا سا بات کو سمجھیے گا کہ کیوں کہتے ہیں, حکمت کیا ہے. یہ میں نے ترجمہ اس لیے پیش کر دیا تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. مثلا میں اپنی مثال لے لیتا ہوں. میں یہاں پر مسجد پڑھنے کے لیے آیا. ایک صاحب آگے بڑھ کے پوچھنے لگے مولانا آپ کہاں سے آئے ہیں. میں نے کہا میں نہیں جانتا. پھر پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے. میں نے کہا میں نہیں جانتا. وہ اٹھ کے تھوڑی دور گئے, لوگوں سے کہا یہ مولانا کیسے ہیں, یہ تو دیوانے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے. دیکھیے آپ بات نہیں پہنچی ہے. ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں کہاں پر جانا ہے. تو عزیزان گرامی ہم شیعہ ہو کے جب ہمارے درمیان کا کوئی مرتا ہے تو ہم دلیل دیتے ہیں یہ کہہ کے ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں اور اللہ کے یہاں جانا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے. ہم دیوانے نہیں ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہے بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے اور اسی کی وجہ سے آئے ہیں. اب عزیزو ذرا آپ کی سماعت کو اور ذرا بیدار کرنے کے لیے میں ذرا, کیونکہ دیکھیے ایک بہت بڑے مرثیہ نگار گزرے ہیں میر انیس, ان کو سبھی جانتے ہیں. میں نے اس سے پہلے جمعے میں بھی تھوڑا بہت عرض کیا تھا, پیش کیا تھا کہ جو در اہل بیت سے متمسک ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیے مرثیہ خوانی بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. تو میر انیس کے بارے میں نیر مسعود اپنی کتاب سوانح میر انیس میں لکھتے ہیں کہ ان کے مکان کے اندر ایک حوض تھا. موسم گرما میں وہ غوطہ لگاتے اور غوطہ لگاتے وقت ہی 10, 20, 50 بند مرثیے کا کہہ لیتے تھے اور ان کے لوحے حافظے میں لکھ دیا جاتا تھا, لوحے حافظے پہ. اور جب فارغ ہوتے تھے تو پھر اپنے بیٹے دل مونس کو یا پھر نفیس کو یا پھر کوئی ان کا کوئی عزیز دوست ہوتا تھا جو سامنے ہوتا تھا اس کو پورا مرثیہ لکھوا دیا کرتے تھے. دیکھیں آپ بہت مستند بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ ہے میر انیس کی فضیلت. کیوں در اہل بیت سے متمسک تھے اور مولا حسین سے بے پناہ محبت تھی, لہذا نہاتے وقت ہی آپ کچھ لوگوں کی اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے مرثیے میں. تو یہ ہے ان کا شرف, اسی لیے تو انہوں نے اس پر ناز کیا ہے. کیونکہ دیکھیے ان کے آبا و اجداد کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے میر زاہد جو مرثیہ گو تھے اور جو نگار بھی تھے, ان کے بعد ان کے بیٹے میر حسن یہ بھی مرثیہ گو تھے اور مثنوی نگار اول پڑے تھے. شرح البیان ان کی مثنوی ہے. ان کے بیٹے میر خلیق یہ بھی بہت بڑے مرثیہ گو تھے. پھر میر خلیق کے بیٹے میر بکر علی انیس, میر بکر علی انیس. کبھی تو آ کر میر انیس نے کہا تھا نمک خانے تکلم فصاحت میری, ناطق بندے سن کے بلاغت میری, رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبادت میری, شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری, شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, پانچویں پشت ہے شبیر کی مطرحی میں. یہ میں نے اس لیے پیش کر دیا اس لیے کہ ہم جیسا انسان ہمارے درمیان رہنے والا کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 19ویں شتابدی کی بات ہے. اور اس طرح کا مرثیہ نگار کہ آج بھی لوگ اس کے مرثیوں کو مجلس میں پڑھتے ہیں اور ان کے مرثیے مجلسوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. میں نے اس لیے پیش کر دیا ہے. لیکن میرا اصل موضوع ہے وہ ہے حکمت. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حکمت کسے کہتے ہیں. اب دیکھیں آپ کہ حکمت انسان کی زندگی میں جو چیز علم کے کام آتی ہے اس کا نام ہے کتاب, اور جو انسان کے کردار میں اصلاح کرتی ہے اس کا نام ہے حکمت. دیکھیے توجہ چاہتا ہوں, ہم امتی دو چیزوں سے بے خبر تھے, نہ ہمارے پاس کتاب کا علم نہ ہمارے پاس حکمت کی تعلیم. اللہ نے پہلے ہی دن پیغمبر کو بھیج کر
बेइज्जत के मकसद को ये वादे कर दिया कि जो बेइज्जत का मकसद है वो ये है कि जो दो बातों से लोग बेखबर हैं उनसे आगाह कर दिया जाए, एक किताब की तालीम दे दी जाए और उसके बाद हिकमत की तालीम दे दिया जाए। दो चीजें हैं। अब इंसानी जिंदगी देखिए, आप इंसानी जिंदगी में हिकमत क्या है? हिकमत उस मुस्तहकम और मजबूत बमानी और अकली अमल का नाम है कि जिसकी बुनियादें इल्म पर कायम है। अगर इल्म है तो आपके अंदर हिकमत पाई जाएगी, और अगर इल्म नहीं है तो फिर हिकमत आपके अंदर नहीं पाई जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब हिकमत का पहला मरहला क्या है? हिकमत का पहला मरहला है अपने नफ्स की इस्लाह करना। हिकमत का पहला मरहला है अपने नफ्स की इस्लाह करना। अगर कोई अपने नफ्स की इस्लाह न कर सके तो फिर वो हिकमत की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। और दूसरों की इस्लाह करने से पहले इंसान अपने नफ्स की इस्लाह करे, तब वो दूसरों की इस्लाह कर सकता है। अब देखिए, आप हिकमत तब उसको मिलेगी। अब उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले या फिर अगर इंसान अपने नफ्स की इस्लाह करे, अपने नफ्स की इस्लाह करे, तो पाकीज़ा बनाए, तो इसके बावजूद भी वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। जिस तरीके से देखिए, एक बीमार और उसके बाद फिर खुद बीमार है और उसका इलाज वो खुद ही कर रहा है। बीमार है, उसका इलाज वो खुद ही कर रहा है। मसलन कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज कर रहा है, तो फिर अज़ीज़ान गिरामी, जब तक मरीज डॉक्टर के पास बैठकर ये नहीं बताएगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं समझ सकता। डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं समझ सकता है। तो मालूम ये हुआ कि इलाज करना वहाँ पे आसान होता है जब डॉक्टर को बीमारी का पता चल जाता है, मर्ज का पता चल जाता है। इलाज वहाँ पे ठीक तौर पे नहीं हो पाता है कि जहाँ पर डॉक्टर को पता ही नहीं है कि बीमारी कौन सी है। तो मालूम ये होगा कि अगर डॉक्टर भी खुद अपना इलाज करे तो उतना अच्छा इलाज नहीं कर पाता है जितना अच्छा इलाज वहाँ पे होगा कि मरीज कोई और है, डॉक्टर कोई और है। इसलिए कि अरबी में ये मुहावरा बहुत मशहूर है कि अगर कोई बीमार गिरा है तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। बीमार गिरा है, बीमार हो जाती है। तो अब ये मालूम हुआ कि कोई भी इलाज उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होता कि जब तक सही तरीके से मरज का इल्म ना हो जाए। अब देखिए, आप कोई भी मरीज आया डॉक्टर के पास, अब उसके पास इल्म गैब नहीं है, वो आलिमुल गैब नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी मरीज जब अपना मर्ज नहीं बता पाता है, डॉक्टर दवा देता रहता है, मगर धीरे धीरे क्या होता है, वो मरीज इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। लिहाजा अब मुझे कहने का मौका मिल रहा है कि डॉक्टर वो होता है कि जिसको इलाज मालूम होता है मगर मर्ज मालूम नहीं होता है। इलाज मालूम होता है मगर मर्ज मालूम नहीं होता है। जब तक मरीज उसे नहीं बताएगा तब तक उसे मालूम नहीं होगा है। अज़ीज़ान गिरामी, चूंकि डॉक्टर के पास इल्म गैब नहीं है, बस अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपना जो तबीब बना कर भेजा उसको ऐसा साहिबे इल्म किरदार बना कर भेजा, लाख मरीज उसके सामने कहे मैं बीमार नहीं हूँ, मगर पैगंबर जानता है तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम्हारा इलाज क्या है। डॉक्टर को धोखा दे देगा कि मैं सेहतमंद हूँ, मगर पैगंबर को अल्लाह ने ऐसा तबीब बनाया है, लाख उसके सामने कहो मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं बहुत बड़ा परहेजगार हूँ, मैं कौम में इस्लाह चाहता हूँ। अल्लाह ने खबरदार किया, ऐ पैगंबर, मेरे हबीब खबरदार, होशियार, ये अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून, ये तो जमीन पर फसाद बर्पा करने वाले हैं। अल्लाह ने जिसको तबीब बनाकर भेजा उसको ऐसा साहिब इल्म किरदार बनाकर भेजा जो मरीज के मर्ज का इल्म भी जानता है और उसका इलाज भी जानता है। अब उसके बाद आप देखें तो मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ कि हिकमत का पहला मरहला अपने नफ्स की इस्लाह करना है।
अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाना है, अपने नफ्स को पाक करना है, तो पाक कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। पाक कौन करेगा? हम ही करेंगे। अपने नफ्स की इस्लाह, अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरों की इस्लाह करें तो पहले अपने नफ्स को पाक करें, उसके बाद फिर दूसरों की इस्लाह करें। तो पाक कौन करेगा? इस्लाह कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। तो मालूम क्या होगा कि बीमार भी खुद ही है, मुआलिज भी खुद ही है। देखिए एक जुमले पे, बीमार भी खुद ही है, डॉक्टर भी खुद ही है, बीमार भी खुद ही है, डॉक्टर भी खुद ही है। तो अजीज़ान गिरामी, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम उस मेयार का नहीं है। इस्लाह करने वाले के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, नहीं जो इस्लाह की जा रही है और नफ्स को पाकीज़ा बनाया जा रहा है उस पर एतबार किया जा सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, जरूरत इस बात की है कि इस्लाह की जिम्मेदारी जिसे दी गई है वो ये ना कहे कि मैं अपने नफ्स को पाकीज़ा बना रहा हूँ, उससे ये ना कहा जाए पहले तुम अपने नफ्स को पाक करो उसके बाद दूसरों को पाक करो। अल्लाह ने इतना इंतजाम किया, जिनको दुनिया वालों के लिए नफ्स को पाकीज़ा बनाने के लिए भेजा, पहले उनसे ये नहीं कहा तुम अपने नफ्स को पाक करो, बल्कि अल्लाह ने उनके नफ्स को खुद पाकीज़ा बनाया। उसके बाद पूरी कायनात के लिए कहा इनके नफ्स को पाकीज़ा बनाओ। सलावत पढ़ने और देखिए मैं दलील देता हूँ, आयत तकरीर इस बात की दलील है। हमारे और उनकी तारत में यही फर्क है, सब अपने नफ्स की इस्लाह करते हैं, मगर अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि इनको अपने नफ्स की इस्लाह करने की जरूरत नहीं है, हमने खुद इनके नफ्स को पाकीज़ा बनाया है ताकि ये कायनात की नफूस को पाकीज़ा बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अजीजों, नफ्स की तहारत के लिए, पाकीज़गी के लिए वो कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए? तरीक़ाकार कुरान मजीद का है, वही जो पैगंबर इस्लाम ने किताब की तालीम देता है। यानी क्या मतलब? पहले दवा मालूम हो जाए, किताब की तालीम देता है यानी पहले दवा बता दी गई, उसके बाद हिकमत की तालीम देता है, दवा कैसे इस्तेमाल करनी है, दवा कैसे इस्तेमाल करनी है। और पैगंबर इस्लाम ने इन दोनों को बखूबी अंजाम दिया है। अब मैं आपके सामने तारीफ का पस मंजर भी आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन इसी ज़िम्न में पहले मैं दो लफ्ज़ और पेश करता हूँ। वो क्या है कि अल्लाह ताला ने अपना तारुफ बार बार कराया है लफ्ज़ हकीम के जरिए। लफ्ज़ हकीम मसलन जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, जो सब लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हकीम यानी अल्लाह ने अपना तारुफ कराया लफ्ज़ हकीम के जरिए। तो क्या लफ्ज़ हकीम के माना वही है जो हमारे यहाँ तबीब के माना है, जो डॉक्टर के माना है? नहीं अल्लाह ने गिरामी, हकीम के माना वो नहीं है जो अल्लाह ने अपने लिए कुरान मजीद में इस्तेमाल की है, बल्कि उसके दो शोबे हैं कि जहाँ पर उन दो शोबों के अंदर अल्लाह ने अपना मुजाहिरा किया है। एक शोबे का नाम है तखलीक और दूसरे शोबे का नाम है जिंदगी गुजारने के लिए कानून। तखलीक यानी अगर अल्लाह की हिकमत को देखना है तो दो चीजों में, एक तखलीक के अंदर अल्लाह ने दरख्तों को पैदा कर दिया, अल्लाह ने जानवरों को पैदा कर दिया, अल्लाह ने समुद्रों में जानवरों को पैदा कर दिया, परिंदों को पैदा कर दिया, तमाम मखलूक़ात को पैदा कर दिया है। उसके बाद इंसान को खल्क़ कर दिया, इंसान को अपने जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो इंसान के लिए कानून बना है उसे कानून नहीं कहा जाता है, उसे शरीयत कहा जाता है। लेकिन जो जानवरों के लिए कानून है उसे शरीयत नहीं कहा जाता है, उसे कानून कहा जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, यानी अल्लाह ये कहना चाहता है अगर मेरी हिकमत को पहचानना है, मेरी तख्लीक में देखो, मेरी हिकमत को पहचानना है, मेरे कानून में देखो, मेरा कोई कानून ऐसा है ही नहीं जो हिकमत से खाली हो, और कोई ऐसी मखलूक मैंने पैदा ही नहीं की है जो हिकमत से खाली हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो हिकमत से खाली हो। और बात आगे बढ़ती है कि ये कैसा हकीम है, ये ऐसा हकीम है कि इसका इनकार करने वाला भी अगर इनकार करता है तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह उससे डरता है, अल्लाह उससे चिढ़ता है, अल्लाह उससे बदला लेता है, बल्कि जितना इनकार करता चला जाता है अल्लाह उसे ढील देता चला जाता है, अल्लाह उसे ढील देता चला जाता है। ज़्यादा वक्त लेना मकसूद नहीं है। आप देखें जनाब मूसा जब फिरौन के पास पहुंचे
तो कहते हैं कि अल्लाह को एक मान लो, उसके सामने सब झुका लो। तो फिरौन कहता है तुम कौन हो, मेरे सामने ये नहरें जारी हैं। देखिए अल्लाह किस तरीके से जो है वो जिस पे इंसान को नाज होता है, गुरूर होता है, उसको उसी में डुबो देता है। तो फिरौन कहता है तुम कौन होते हो, मेरे सामने ये नहरें जारी हैं। तो अल्लाह ने कहा सारा गुरूर इन नहरों की वजह से है, तो ये नहरें तुम्हें डुबो देंगी। तो डूबा तो उसी नहरों के अंदर कारून कि जिसको अपनी जमीन पे बड़ा नाज था। तो अल्लाह ने कहा अच्छा तुम्हें जमीन पे बड़ा नाज है, यही जमीन तुम्हें जमीन बोझ करता है कि पता भी नहीं चलोगे। तो अली लोग ये है अल्लाह की हिकमत और अल्लाह हकीम है। अब मैं तारीख का पस मंजर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, यहाँ से पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अभी तक ये समझ लीजिए कि तमीज़ी गुफ्तगू थी, लेकिन अब जो पेश करने जा रहा हूँ बहुत ही पुरलतीफ गुफ्तगू होगी आपके सामने। हर इंसान इस्लाह करना चाहता है तो काम कहाँ से शुरू करे, बताइए आप कहाँ से शुरू करें। हमारे और आपके दरमियान यही होता है, अगर हम मान लें कि कोई अपनी कौम की इस्लाह करना चाहता है तो कहाँ से काम शुरू करें, अपने गांव से, अपने खानदान से। अगर अपने गांव से शुरू करता है तो उसके लिए परेशानी आती है। मसलन अपने गांव से शुरू की उसने तबलीग, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, देखिए बुरा न मानिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अपने गांव से तबलीग शुरू की, किसी साहब को देखा कि आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, तो एक मरतबा जो जिनसे कहा तो उन्होंने कहा जाके पहले अपने अब्बा जान को उनके बारे में भूल गए, जाके पहले अपने अब्बा जान को देख लो। तुम्हारी बचपन में ऐसी से शरारतें देखी है, तुम जवानी में ऐसे थे, आज आए हो हमारे सामने तबलीग कर रहे हो, जाओ पहले अपने अब्बा जान को इन सबको देखो, सुधारो। तो अल्लाह निगरानी, इसका मतलब ये है कि परेशानी आ गई, गाँव से परेशानी आ जाएगी। लिहाजा मालूम ये होगा कि पढ़ो कहीं और, मुजाहिरा करो कहीं और। अब जहाँ आप जाएंगे, पता चला आप जहाँ पे गए पढ़ लिख कर जगह पर, अब वहाँ पे जब तबलीग कर रहे हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं, बहुत मुक़द्दस मौलाना है, बेशक बेशक। तो अज़ीज़ान निगरानी मालूम ये हुआ कि इंसान तबलीग वहाँ से शुरू करता है कि जहाँ से उसको ये ना पता हो कि मेरी कमजोरी ढूंढ ली जाएगी, मेरी कमजोरी का पता हो जाएगा। अगर कमजोरी का पता हो गया तो लोग कहेंगे जरूर। अब हिकमत पैगंबर को देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कायनात मेरी है, मैं जहाँ से कहूँगा काम वहाँ से शुरू होगा। मेरे हबीब अपने खानदान से काम शुरू करो, अपने कबीले से काम शुरू करो, अपने अशीरे से काम शुरू करो। अब अज़ीज़ान गिरामी ये क्या माजरा है, अब जब काम शुरू करेंगे तो फिर जब पैगंबर इस्लाम लोगों के दरमियान आएंगे, लोगों के सामने खड़े होंगे, तो अल्लाह यही तो चाहता है कि 40 साल जिनके दरमियान तुम रहे हो उन्हीं के सामने खड़े होकर तबलीग करो, ताकि इनमें से कोई तो कहेगा बचपने में ऐसे थे, 10 साल की उम्र में ऐसे थे, 20 साल की उम्र में ऐसे थे, 40 साल की उम्र में ऐसे थे, कोई तो कहेगा। निगरानी मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई, कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। अब आखिरी वक्त तक पूरी को चाहता हूँ, ऐसे माहौल में पैगंबर इस्लाम ने अपने खानदान से तबलीग करना शुरू कर दिया। अब जब तबलीग खानदान से होगी तो जाहिर बात है मकबूल होनी है, कोई कमी है नहीं, कोई ऐब है नहीं। जब यहाँ पे मकबूल हो गई तो बाहर भी मकबूल हो जाएगी। अब जनाबे अब्दुल्ला कौन है, पैगंबर इस्लाम के बाप, मुआशरा जानता है जनाबे अब्दुल्ला को, मगर पैगंबर इस्लाम को उस वक्त दुनिया में आए जब जनाबे अब्दुल्ला यहाँ पर नहीं थे। तो अब जब पैगंबर इस्लाम मक्के की गलियों में कह रहे होंगे किसी के सामने क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, तो कह देना चाहिए था जाओ पहले अपने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर ये नहीं मिलता गिरामी। इसका मतलब ये है कि जनाबे अब्दुल्ला का किरदार इतना मजबूत था कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पैगंबर से कोई कहता जाके पहले अपने अब्बा जान को पढ़ाओ। तो गोया पैगंबर इस्लाम सिर्फ वो अपने किरदार का लोहा नहीं मनवा रहे हैं, बल्कि अपने बाबा का भी लोहा मनवा रहे हैं कि देखो मेरा बाबा मुवाहिद था, कलमा पढ़ने वाला था, तौहीद को था। और उसके बाद आगे दरमियान में ये भी मिलता है कि जब आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह
तुफ्लिहू, और बुत परस्तों के मैं खिलाफ पैगाम लेकर आया हूँ। तो उन्हीं में से एक बच्चा खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप घबराइए नहीं, मैं आपका साथ दूंगा। तो लोगों में से किसी एक बूढ़े को तो कहना चाहिए था ना कि पहले जाओ अपने अब्बा जान को ईमान पे लेकर आओ। इस्लाम ने क्यों अपने खानदान से तबलीग का काम शुरू किया? ताकि अपना किरदार का कलमा भी पढ़वाया जाए, अपने बात को मुवाहिदी बताया जाए और ये बताया जाए कि अबू तालिब मोमिन थे, काफिर नहीं थे। मोहम्मद ये थी हिकमत तबलीग पैगंबर इस्लाम की, जो उन्होंने अपनी बस्ती से शुरू की, अपने खानदान से शुरू की। अब जब पैगंबर इस्लाम के बाद मौला कायनात अलैहिस्सलाम, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपके सामने पेश कर दूं कि मौला कायनात की ज़िंदगी, चाहे वो खाना नशीनी की ज़िंदगी रही हो या वो खाना नशीनी की ज़िंदगी ना रही हो, आपकी ज़िंदगी में हिकमतें पोशीदा हैं। बस एक हिकमत आपके सामने पेश कर देता हूँ, वो भी जंग सिफ़ीन। जंग सिफ़ीन का मारिका है, जंग तमाम होने पर है, दरमियान में कुरान मजीद लेकर आ जाते हैं और कुरान मजीद को दिखा रहे हैं ताकि मौला अली जंग को रोक दें। मगर मौला अली ने समझाया कि ये देखो मक्कारी कर रहे हैं, ये कुरान लेके नहीं आए हैं, अगर इनको कुरान को मानना होता तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है अलीयुन माल कुरान, कुरान अली के साथ है, तो ये मुझे मान लेते, धोखा देने वाले हैं। मगर कौम ऐसी थी, समझी नहीं। तो फिर आखिरकार मौला कायनात ने जंग को रोकने का हुक्म दे दिया। मैं कहूँगा या अली, जंग फतह होने वाली थी, थोड़ी देर में फतह हो जाती जंग। ये कुरान मजीद लेकर आए थे, आपको मालूम था ये धोखा दे रहे हैं। तो फिर मौला कायनात की आवाज़ आई, हिकमतों का मालिक मैं हूँ, हिकमतों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। मैं जंग जारी रखता, जंग फतह हो जाती, लेकिन कल तारीख लिखने वाले कहते कि अली ने कुरान को हटा के इक़्तिदार हासिल किया है। मुझे ये बर्दाश्त है कि मैं जंग फतह न कर सकूं, मगर मुझे ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं है कि मैंने कुरान मजीद को छोड़ दिया। ये थी हिम्मत, लिहाजा जंग को रोक दिया गया। और वहीं से ये मौला कायनात अलैहिस्सलाम की हिम्मत थी। अब उसके बाद भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिम्मत। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिम्मत क्या थी? लोग बहुत एतराज़ करते हैं, बहुत एतराज़ कि आपने हुकूमत एक नाअहल के हवाले कर दिया, बहुत एतराज़ करते हैं। मगर उस वक्त तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत से काम लिया और इस तरह से शियों की हिफाजत की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली, वो क्या है? मदीने को छोड़ना, इसमें क्या हिकमत है? मक्के को तर्क करना, इसमें क्या हिकमत है? और करबला में वारिद होना, इसमें क्या हिकमत है? और जमीन को खरीदना, इसमें क्या हिकमत है? बहुत सारी हिकमतें हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अंजाम दी। अजीजों, और हिकमत क्या है? देखिए आप, एक 6 महीने के बच्चे को लेके आ रहे हैं साथ में करबला की तरफ, लेकिन वहीं पर मदीने में जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर, जिनके ईमान में कोई कमी नहीं, जिनके इखलास में कोई कमी नहीं, जिनकी शुजाअत में कोई कमी नहीं, जिसके बावजूद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुको। देखिए हिकमत। और लोगों को लेके आ रहे हैं, मगर कुछ ऐसे अफराद भी मदीने के अंदर मौजूद हैं जो अपने ईमान में कामिल हैं, आला मंजिल पर फायज हैं। इसके बावजूद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम मदीने में रुको, मदीने में रुको। आखिर क्यों? तो उसकी वजह यह है कि अब्दुल्ला इब्न जाफर हाकिम मदीना के पास आए उस वक्त कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा काफिला करबला की तरफ रवाना होने वाला था। आए और जबरदस्त तकरीर की हाकिम मदीना के सामने, ऐसी तकरीर की कि वो कांप गया और उसका मिजाज बदल गया, उसका हुक्म बदल गया। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? नमाज़ रसूल मदीने से जा रहा है
अपने नाना का रोज़ा छोड़कर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी तकरीर की कि उसने फौरन हुक्म दे दिया कि मौला हुसैन से जाके कह दो कि उनको मदीने में अमान दी जाएगी, वो चाहे यहाँ पर रुकें चाहे यहाँ से चले। यानी अब्दुल्ला इब्न जाफर के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी हुज्जत को तमाम कर दिया मदीने के अंदर। ये थी हिकमत अमली। और उसके बाद फिर जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर मौला हुसैन की खिदमत में आए, कहा आका मैंने इजाज़त दे दी है, उसने अमान दे दी है। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि मैं धोखे को खूब पहचानता हूँ, ये जो अमान देने वाले हैं ये मुझे असलन अमान देने वाले नहीं हैं। मैंने इरादा कर लिया है और मेरे नाना रसूल खुदा का यही वादा है कि मैं करबला जाऊँ। तो अज़ादारों, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कहा कि आप वाक़ईअन मदीने से चले जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं वाक़ईअन मदीने से चला जाऊँगा। अज़ीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में, तो करबला आने के बाद देखिए कि आपने सबसे पहले ज़मीन खरीदी 60,000 दिरहम में। क्या ज़रूरत थी? आपको वहाँ पे मकान बनवाना था, आपको वहाँ पे कैसा बनवाना था, महल बनवाना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था आपका इरादा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिकमत मालूम थी कि कल जब तारीख लिखने वाले लिखेंगे तो किसी को जालिम ठहराएंगे और किसी को मज़लूम साबित करेंगे। मैं ज़मीन खरीद लेता हूँ ताकि ये अंदाज़ा हो जाए कि मैं अपनी बस्ती पर आया हूँ, मैं अपनी ज़मीन पर आया हूँ, लिहाजा मुझे कोई जालिम नहीं, लिहाजा मुझे कोई जालिम नहीं कहेगा, मुझे मज़लूम अज़ीज़ों। और उसके बाद वो सारी ज़मीन उनके हवाले भी कर दी। बस अज़ीज़ों, ये जो कुछ मैंने उनके अल्फाज में आपके सामने बयान पेश किया, परवरदिगार इसका अज्र अख्तरी बेगम मरहुमा को विसाल फरमाए और हम सबको तौफीक दे परवरदिगार कि हम इसी तरीके से नेक अमाल बजा लाते रहे। परवरदिगार हमारी मजलिसों को, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। अज़ादारों, एक जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का शौहर जब काफिला जाने लगा तो आखिरी वक्त जनाब ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास उनकी खिदमत में आती हैं और बैठ कर कहती हैं कि ऐ मेरे वालियो वारिस, आप जानते हो कि मैं अपने भैया हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मैं अपने भैया हुसैन के बगैर अकेली नहीं रह सकती, तो क्या मुझे इजाज़त देते हो कि मेरा भैया हुसैन मदीना छोड़ रहा है, मैं भी अपने भैया हुसैन के साथ जाऊँ? जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर ने इजाज़त दी। जनाब ज़ैनब उठकर अपने भैया हुसैन के पास आके कहती हैं, भैया हुसैन, मेरे वालिद वारिस ने इजाज़त दे दी है, लिहाजा मैं आपके साथ अब मदीने से रवाना होना चाहती हूँ, करबला की तरफ जाना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ ये ज़ैनब जाएगी। हज़रत अल्लाह अज़ादारों, जनाब ज़ैनब कितनी बड़ी साबिरा में सानिया ज़हरा है, जिनका लक़ब है, चूँकि एक मरहूमा की सवाब की मजलिस है और मर्सिया खानों में बीवी के ही मसाइल पढ़ेंगे, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जनाब ज़ैनब के भी मसाइल आपके सामने पेश कर दूँ। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब उस शख्सियत का नाम है, उस मज़लूमा का नाम है जिसने सिर्फ करबला में 72 दाग नहीं देखे, बल्कि अज़ादारों यही वो ज़ैनब है कि जब बचपने का आलम था तो पैगम्बर इस्लाम का जनाजा भी अपनी आंखों से देखा था। और उसके बाद जब और तारीख आगे बढ़ती है तो यही वो ज़ैनब है कि जिसने अपनी मादर गिरामी के पहलू पर चलता हुआ दरवाज़ा भी देखा था, शिकस्ता पहलू भी देखा था। कितनी बड़ी मज़लूमा है। मैं आपको शुरू से लेकर चल रहा हूँ अज़ादारों, अगर आप सब कर सकोगे तो गिरिया फरमाओगे। जनाब ज़ैनब कौन? जनाब ज़ैनब वो जनाब ज़ैनब है अज़ादारों के कूफे में
21 رمضان المبارک کو جب مولا علی کی شہادت واقع ہوتی ہے، 19 رمضان المبارک کو ضربت لگتی ہے اور مولا علی بیت الشرف میں آتے ہیں، تو یہی وہ زینب ہے کہ جس نے اپنے بابا کے زخم کو دیکھا، اپنے بابا کے زخموں کو صاف بھی کیا ہوگا، کیسے صبر کیا ہوگا عزادارو، حضرتم اللہ، یہی وہ زینب ہے عزادارو کہ جب تاریخ اور آگے بڑھتی ہے، ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ جودہ بنت اشرف نے آپ کو زہر دے دیا تو آپ کے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، تو دشت میں جگر کے ٹکڑے گرتے ہوئے جناب زینب نے دیکھے تھے، اور جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی منظر دیکھا تھا کہ بھیا حسن کا جنازہ جا رہا ہے اور ظالم تیر برسا رہے ہیں، جنازہ واپس آ جاتا ہے، کون زینب عزادارو، کتنی بڑی مظلومہ ہے عزادارو، اور اس کے بعد یہی وہ زینب ہے عزادارو جو کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر کے سینے میں بچی کا پھل دیکھتی ہے، جناب علی اکبر کے گلے پہ میرے ہرملا دیکھتی ہے، اور جناب عباس کے دونوں شانے کٹے ہوئے دیکھتی ہے، عزادارو یہی وہ زینب ہے کہ جو اپنے ماں جائے کو اس منظر سے دیکھتی ہے، اس طرح سے دیکھتی ہے کہ شمر کندو خنجر لے کر کھڑا ہوا ہے، سینے پر گلا کاٹ رہا ہے، زینب پیڑے پر کھڑی ہوئی ہے، مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے اے نانا آ جائیے میرے بھیا حسین کی خبر لیجیے، کبھی نظر تو کر کے کہتی ہے اے بابا آ جائیے کربلا کے میدان میں، مگر کوئی آواز نہیں آتی، عزادارو ایک مرتبہ یہ آواز مولا حسین کے کانوں سے ٹکرائی، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں چلی جاؤ، عزادارو ادھر جناب زینب خیمے میں، شمرا نے کندو خنجر چلایا، سوتن میں جدائی کی خدا میں آواز گونجی الا حسین بکربلا، الا حسین بکربلا، حضرت اللہ عزادارو ہاں آواز گریہ بلند ہے، اللہ کی آواز پر رحمت نازل فرمائے، ابھی جناب زینب پہ ظلم رکتے نہیں عزادارو، اب ظلم کی انتہا ہو گئی، مولا حسین شہید ہو گئے، اشقیاء آگے بڑھے، خیموں میں آگ لگا دی، اب تو کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، عزادارو یہی زینب ہے، سید الساجدین کو جلتے ہوئے خیمے سے لے کے نکل رہی ہیں، شب عاشور ہے، شام غریبہ ہے، بچوں کی عبادت کر رہی ہے کہ کوئی ظالم نہ آ جائے اور بچوں کو تکلیف پہنچائے، اللہ عزادارو، اور اس کے بعد جب شام غریبہ گزرتی ہے، 12 محرم کا دن آتا ہے عزادارو، ایک مرتبہ اشقیاء آگے بڑھتے ہیں، اہل حرم کو قید کر لیا جاتا ہے، سید الساجدین کو قید کر لیا جاتا ہے، جناب زینب کو اسیر کر لیا جاتا ہے، اور اس قافلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ شمر مدور کہتا ہے میں سب بیویوں کو سوار کرا دوں، جناب زینب نے کہا نہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، میں سب کو سوار کراؤں گی، عزادارو جناب زینب نے فضہ کو آواز دی اما فضہ آؤ میں سوار کرا دوں، ام فروہ آؤ سوار کرا دوں، ام لیلہ آؤ سوار کرا دوں، عزادارو جناب زینب کتنی مظلومہ ہے، سب کو سوار کرا دیا، مگر جب تنہا بچی دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، دریا کا رک گیا، اے بھیا عباس مدینے سے بڑے اہتمام کے ساتھ لائے تھے، زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں، آ جاؤ بھیا عباس میری امداد کرو، آنے والے پروردگار ہماری مجلس کو قبول فرما، پروردگار اہل بیت علیہ السلام کو پہلے جو مومنین ایمان ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کی عمر میں اضافہ فرما، پروردگار جو مومنین مظلومین ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، پروردگار مجلس کا ثواب تری بیگم مرحومہ کی روح کو نثار ہو، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کی سکون میں تعجیل عطا فرما، اور ہم کو ان کے عوام کا انصار و شمار فرما،
آپ سے جمع سے ایک مرتبہ اور سورہ توحید اور سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو کے ثواب کی ساتھ فرمائیں۔